बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वी विल गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फास्टा फॉर्मेट। के फास्टा फॉर्मेट क्या होता है, वी विल डिस्कस इन दिस ट्यूटोरियल हाउ टू रिट्राइव databases by using NCBI। फास्टा फॉर्मेट को आप NCBI से कैसे ले सकते हैं? इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इन बायोकेमिस्ट्री इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट। इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स for representing the nucleotide sequence or amino acid sequence of protein one letter code. As you know, in bioinformatics, amino acids were coded as one letter code, and nucleotide base is also coded as one letter code. For example, A for adenine, C for cytosine, G for guanine, T for thymine, and U for uracil in a messenger RNA. These nucleotide bases are represented with the sequence of the amino acid. So, for example, glycine, instead of the glycine, we use the word G. By using this letter code, NCBI generate a FASTA format and now become a universal standard field in the bioinformatics for retrieval of data from the NCBI. This data is very important for study evolutionary history, to study the genetic basis of the organism. The point is that due to the simplicity of the FASTA format, make it easy to manipulate and parse sequence using text processing tools and scripting language like programming language Python, Ruby, and files. So let's go to our screen to see how you can retrieve FASTA format using NCBI. First of all, I will show you how to use FASTA format, how to retrieve FASTA format from NCBI. The point of discussion is very important. NCBI has a large number of the data to store here. You will write in your search bar NCBI. When you write NCBI, you will see the first query that is known as National Center for Biotechnology and the Information. You will open it. When you open it, you will see a bar where you write the name of a gene which would you like to study. हमने आज डिस्कस जो करना है वो एक्चुअली डिस्कस करना है हाउ टू रिट्राइव न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। तो यहाँ पर ऑल डेटाबेस का आपके पास ऑप्शन होगा। यू विल स्क्रॉल डाउन द पेज एंड यू विल सी हियर लाइक nucleotide here. You will see nucleotide and you will write the name of the gene here. Like I am going to write a NRAS gene. I will search NRAS, and after a few minutes you will see about the history of the NRAS. NRAS gene is the proto-oncogen gene. Oncogenes matlab cancer, important for to study cancerous bases or cancer causing. Secondly, GTPase. GTPase जैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करती है ये जीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होमोसैपियन ह्यूमन में भी पाई जाती है। यहाँ पर जो आपके पास रेफरेंस पड़े हुए हैं वो एक्चुअली होमोसैपियन कैनरास होमोसैपियन जीन है। इसको ALPS4 या CMNS NRAS और NCMS और NRAS1 और NS6 भी कहा जाता है। इस जीन की आईडी है 4893 और इसमें रेफरेंस सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेफरेंस सीक्वेंस है प्रोटीन के लिए, रेफरेंस सीक्वेंस है जीन के लिए और पबमेड के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज विद टू रिट्राइव द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस। You don't we are not here talking about to retrieve the amino acid sequence. We are going to retrieve the nucleotide. So we click the reference sequence on G. हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑन होगा। लेट मी शो यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड लिखा है, इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस आपके पास न्यूक्लियोटाइड का है। तो यहाँ उसने नाम लिखा, ये जेन बैंक में ओपन होगा। NCBI पर
जब आप न्यूक्लियोटाइड को सर्च कर रहे थे तो आपने उस इंफॉर्मेशन को, न्यूक्लियोटाइड को सर्च किया, उसमें आपने स्पेसिफिक जीन लिया जिसे आप एनरैस कहते हैं, तो ये ओपन हुआ फिर जेन बैंक में। यहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है। और जेन बैंक में आप देखें, ये नोन एज होमो सैपियन एनरैस प्रोटो ऑन्कोजेन जीटीपीएज एनरैस एंड रेफरेंस सीक्वेंस फॉर जीन, इसका जो कोड नंबर है दैट इज LRG92 ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। और इसकी लोकेशन जो है, ये सारा इसका इंट्रोडक्टरी पैरा है, इंट्रोडक्टरी लाइन है इसकी। NCBI पर इसका कोड है NG007572.1। और यहाँ पर अब आप स्टडी करना चाहते हैं इसका फास्टा या ग्राफिक्स, वी आर गोइंग टू स्टडी फास्टा। तो हम यहाँ पर फिर फास्टा पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसका फास्टा सीक्वेंस लेना चाहते हैं। ड्यू टू सिंपलिसिटी फास्टा सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेन बैंक में हम फास्टा सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखें ये सारे का सारा जो सीक्वेंस है दैट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ NRAS जीन, द जीन which is important for the conversion of the GTP into GDP and also known as proto-oncogenic gene। तो फास्टा के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बताती चलूं, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है। अगर आप पूरा सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं, ये सिंबल कॉपी नहीं करते, यू आर नॉट एबल टू इनपुट दिस डाटा। तो यहाँ पर ये हमेशा जो फास्टा का सीक्वेंस होगा वो ग्रेटर नंबर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जेनेटिक उसकी आईडी है, होमोसेपियन में है, एनरैस प्रोटोऑन्कोजेन है, जीटीपीएज एनरैस भी कहलाती है, रेफरेंस सीक्वेंस बताया हुआ है, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाई जाती है। अब आप इस सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, आप इस सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे और इससे रन कर सकते हैं ब्लास्ट को, और इसका प्राइमर भी पिक कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं सीक्वेंस फीचर्स को, या फिर आप एनालाइज कर सकते हैं, पूरे का पूरा सीक्वेंस एनालाइज करते हैं। दीज आर पॉइंट कि आप इस डाटा को सिलेक्ट करके रन करते हैं ब्लास्ट को, या प्राइमर पिक करते हैं, या हाईलाइट करते हैं सीक्वेंस के फीचर्स को, या फिर फाइंड करते हैं इसके सीक्वेंस को ओवरऑल। दूसरा इसका मेथड ये है, यहाँ से आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, इस कंप्लीट रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी करके सिलेक्ट करके आप सेंड कर सकते हैं, कोडिंग सीक्वेंस बना सकते हैं, जीन फीचर स्टडी कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट करने के लिए डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं, कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड पर ले जा सकते हैं, या फिर किसी एनालिसिस टूल के साथ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह NCBI से डाटा हम रिट्राइव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फास्टा। तो ये NCBI लिखेंगे, आई विल समराइज इट। NCBI लिखने के बाद आप बार में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, बार में जाएंगे, बार में जाकर आप पहले सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा सीक्वेंस डेटाबेस में स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था कि हम इसको स्टडी करना चाहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो भी जीन हम स्टडी करना चाहते हैं उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टडी करना चाहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिखा, यहाँ पे हमने NRAS लिखा और सर्च किया, और NRAS के बाद हमारे पास कंप्लीट जीनोमिक आईडी आ जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है इस जीन के फीचर क्या हैं, तो ये भी पता चल जाता है इस जीन की आईडी क्या है। और साथ साथ हमें ये भी जानते हैं कि इसमें हाउ रेफरेंस सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए, रेफरेंस सीक्वेंस है प्रोटीन के लिए, जीन के लिए। तो हमारा कंसर्न यहाँ पे जीन के लिए था। हमने इसको ओपन किया तो जेन बैंक में जाकर ये ओपन हुआ, और यहाँ पे हमने फास्टा पे क्लिक किया तो हमारे पास फास्टा सीक्वेंस आ गया। तो ग्रेटर देन नंबर से ऑनवर्ड हमने पूरे पेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं एज अ रन ब्लास्ट, पिक प्राइमर, हाईलाइट सीक्वेंस फीचर, और इसके अलावा हम इसको एक फाइल क्रिएट करके यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो रिट्राइव का मतलब होता है डाटे को हासिल करना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, आप इस स्टेप को प्रैक्टिकली इलेबोरेट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।